ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं रिचा सिंह पंजाबी बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करती हाँ। तो शुरुआत करती है आज की पंजाबी बुलेटिन की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खेतीहर किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल फसल के खराब होने के मामले में कुल मुआवजे का 10% हिस्सा अब किसानों की तरफ से लगाए गए मजदूरों को भी दिया जाएगा। लुधियाना में कैबिनेट की बैठक के बाद फैसले की घोषणा करते हुए मान ने कहा, जब भारी बारिश या ओलावृष्टि से फसल खराब हो जाती है तो खेतीहर मजदूरों को भी काम और आय से हाथ धोना पड़ता है। यह रिपोर्ट देखें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राज्य में फसल क्षति के लिए कुल मुआवजे का 10% अब खेतीहर मजदूरों को देने का ऐलान कर दिया है। मान ने कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि जब भारी बारिश या ओलावृष्टि के कारण फसल खराब हो जाती है तो खेतीहर मजदूर भी रोजी रोटी खो देते हैं। मान सरकार का यह फैसला मजदूर वर्ग को एक सौगात है। 1 मई ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਉਹਦਾ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਈਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ 10% 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਈ ਰਟੀਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ फ्री है। बहुत सारी स्कीमां ने। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मान ने मामले में अधिक जानकारी देते हुए बताया, यदि फसल क्षति मुआवजे के रूप में 15,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं तो 1,500 रुपए उन खेतीहर मजदूरों को दिए जाएंगे जो खेतों में काम करने वाले थे। राज्य सरकार जल्द मजदूरों का पंजीकरण शुरू करेगी ताकि वे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के साथ मान सरकार हमेशा खड़ी है। अभी हाल ही में जब केंद्र ने पंजाब के किसानों से फसल को कम कीमत पर खरीदने की बात कही थी तभी सीएम मान अपने अन्नदाताओं की मदद के लिए आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि जो केंद्र कटौती करेगी उसकी भरपाई पंजाब सरकार करेगी। ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 32 ਦੰਦ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਕਣਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੂਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਡੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੂਟਬਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ।
सो ये नखरे करते हैं कि सानू कहते हैं कि मंडियां का जिहड़ा परसेंटेज है मंडी फीस की वो बिहार ते यूपी के बराबर कर लो। बिहार ते यूपी च मंडियां ही है नहीं जी। बिहार ते यूपी 400 किलोमीटर की रेंज ते मंडी है, 4.5 किलोमीटर की रेंज ते मंडी है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈ ਦੂਜੇ ਝੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ठीक है, साडा हक बनदा जेड़ा सानू दे दो, मिन्नतां नहीं असीं करदे सेट। वो कहते हैं ना, देश को आगे बढ़ाने में दो लोगों का सबसे अहम योगदान होता है, एक जवान और दूसरा किसान। अगर इन्हीं लोगों को परेशानी आए तो कहीं ना कहीं देश की नींव कमजोर होती है और भगवंत मान इस बात को बखूबी समझते हैं। जहां एक तरफ भगवंत मान ने मुसीबत घड़ी में किसानों का साथ नहीं छोड़ा, तो वहीं जब उन्होंने खतिहर मजदूर का भी ख्याल रखते हुए उनके लिए भी बड़ा ऐलान किया। यह दर्शाता है कि सीएम मान ने जो वादे किए थे उन्हें वह भूले नहीं है, बल्कि उसे पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के सभी मजदूरों के लिए एक तोहफा दिया गया है कि एक वादा किया था मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कि जब पंजाब में फसलें खराब हुई थी तो उन फसलों से सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं हुआ था, इन फसलों में, इनकी कटाई में, इनकी बुआई में जो मजदूर ने काम किया था उनका भी नुकसान हुआ था। क्योंकि उनका कहा था कि अगर फसल खराब हो जाती है तो जो मजदूरों को काम मिलना था वो काम कम मिलता। तो इस चीज़ को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बार जो कैबिनेट मीटिंग लुधियाना में हुई तो उसमें एक बड़ा फैसला लिया और उसकी फाइनली अनाउंसमेंट कर दी कि मजदूरों को भी 10% का मुआवजा दिया जाएगा। जी हाँ, जो कुल राशि अगर हम कहें कि मुआवजे के तौर पे दी जानी है किसी भी एक पर्टिकुलर खेत में, उसका 10% वहां पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको दिया जाएगा, दी जाएगी। एक बड़ी पहल, एक अच्छी पहल सी तौर पे हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान की, जिसका मजदूरों ने बहुत ज्यादा स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसा होता था तो सरकारें हमारे मजदूरों को भूल जाती थी, पर अब ऐसा सिनेरियो आ गया है कि सरकारें हमें सोच रही हैं और हमारे लिए अच्छा काम कर रही हैं। कैमरामैन हैप्पी के साथ चंडीगढ़ से अमित कुमार। और वहीं देखिए, मान सरकार राज्य में रग्बी के खेल को बढ़ावा देगी। इसी तरह रग्बी खेल को इस साल के खेतन वतन पंजाब दिया में शामिल किया जाएगा। इस बात की जानकारी पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत ने भारतीय रग्बी फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष राहुल बोस के साथ उनके सरकारी आवास पर मुलाकात के दौरान कही। और पीटीयू के होशियारपुर कैंपस में वार्षिक टेक फेस्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के राजस्व मंत्री रमाशंकर जिम्मा ने शिरकत की। वहीं प्रोग्राम में छात्रों को संबोधित करते हुए रमाशंकर ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में उच्च स्तर की सुविधाएं देना, उनकी क्षमता बढ़ाना हमारी सरकार का लक्ष्य है। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर मान सरकार सख्त हो गई है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैस ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की शिकायतों पर एक्शन लिया है। सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, इस रिपोर्ट पर देखिए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मार्च, स्कूलों के लिए जारी किया सख्त फरमान। नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, गलत किया तो स्कूलों को होगी परेशानी। जब से पंजाब में मान सरकार आई है, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मान सरकार छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ समय से सरकार के पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसके बाद मान सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। मनमानी फीस वसूल करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अब मान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हर जिले में एक कार्यबल गठित करने की घोषणा की है। दरअसल लंबे समय से निजी स्कूलों के खिलाफ बच्चों के पेरेंट्स की शिकायत आ रही थी
कि किताबों और पुस्तिकाओं के अलावा अन्य कई चीजों के नाम पर प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से पैसा लूट रहे हैं, जिसको देखते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले कई दिनों तो मैनू बहुत सारी कंप्लेंट्स माँ बाप वालों मिल रही ने, माता पितावां वालों मिल रही ने कि पंजाब के कई प्राइवेट स्कूल, ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों के प्राइवेट स्कूल किताबां के नाम के उत्ते अजीब किस्म के फीसां के नाम के उत्ते बहुत वड्डी लुट कर रहे हैं। साडे वल्लों स्ट्रिक्ट निर्देश ने कि कोई भी स्कूल होवे, CBSE का होवे, कोई भी होवे, NCERT की किताबां होनियां चाहिए, पर इसके बावजूद NCERT की बजाय होर पब्लिशर्स की किताबां, महंगियां किताबां, मैनू बहुत सारी माता पितावां ने मैनू उन्हीं WhatsApp ते स्लिपां भेजियां 7-7 हज़ार रुपए दियां, जिहदे विच 600-600 रुपए की मैथ की किताब, नर्सरी की किताबां बहुत महंगियां, बुक बाइंडिंग के नाम से, नेम स्लिपां के नाम से, तरह तरह के नामों के उत्ते महंगी जिहड़ियां किताबां बेचियां जा रही हैं। इस तो इलावा अजीब किस्म के नाम के फीसां के उत्ते भी जिहड़ी है वो वध फीसां वसूलियां जा रही हैं। ये मसला मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब के ध्यान विच भी आया तो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास किए ने कि कोई भी प्राइवेट स्कूल नूं ये हक नहीं कि आम माता पितावां की जिहड़ी लुट कर सके। इस दे उत्ते कार्रवाई करते हुए साडे वल्लों, मेरे दफ्तर दे वल्लों हर जिले दे विच एक एजुकेशन मिनिस्टर टास्क फोर्स असीं गठित कर दित्ती है, जिथे हर जिले दे विच 3-3 प्रिंसीपल सरकारी स्कूलों की असीं एक टास्क फोर्स बनाई है। जदों भी कभी भी मैनूं कंप्लेंट आऊगी, खुद जाके क्योंकि अक्सर की है रूल्स ये कहते हैं कि हर प्राइवेट स्कूल नूं ਜਿਹੜੇ छोटे शहरों के 3 ਤੋਂ 5 दुकानां उन्होंने अपने बाहर दसनियां पैणगियां जितों किताबां मिलदियां ने, ते जिहड़े वड्डे शहर ने लुधियाना, अमृतसर, जलंधर अरगे इत्थे 20 किताब जिहड़ी दुकानां है उन्हां दी लिस्ट लानी पऊगी। पर असल च यह हुंदा है कि उत्थे ही किसी ना किसी तरीके नाल किताबां बेच दिंदे ने ते कोई होर जाली स्लिपां, अपना नाम नहीं लिखते स्लिपां दे उत्ते, ताकि मौके दे उत्ते इन्हां स्कूलों की कार्रवाई हो सके। एक स्पैशल एजुकेशन मिनिस्टर टास्क फोर्स का गठित कर दिता गया है। जैसा कि आपने सुना कि वीडियो के माध्यम से हरजोत बैंस ने बताया कि हर जिले में जो कार्यबल गठित किया जाएगा उसमें 3 प्रधानाचार्य होंगे। शिक्षा मंत्री को मिली शिकायत के कार्यबल जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट नियामक प्राधिकारी को सौंपेगी। हरजोत बैंस ने अभिभावकों से वादा किया है कि राज्य सरकार शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने देगी। सभी काम कानून और नियम के अनुसार होंगे और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए शिक्षा मंत्री ने एक ईमेल आईडी लॉन्च की है। अभिभावक अपनी शिकायत emofficepunjab@gmail.com पर दर्ज करा सकते हैं। ते नाल ही अज मैं एक जिहड़ी तुहानूं एक ईमेल आईडी दे रहा जी, emofficepunjab@gmail.com। इस ईमेल आईडी के उत्ते कोई भी माता पिता पंजाब का किसी कोने चो भी बैठ के या कोई भी बच्चा वो सीधा सानू कंप्लेंट कर सकता है। एक कंप्लेंट सीधा मेरे दफ्तर च आऊगी, मेरे को आऊगी तो असीं जिहड़े इस दे उत्ते स्ट्रिक्ट एक्शन लवांगे। नाल ही मैं प्राइवेट स्कूलों वालियां नूं भी ये भी दस देना चाहता है कि 30 अप्रैल तक थानू तुसीं बाउंड हो एज पर द एक्ट। 30 अप्रैल तक थानू अपना एक फॉर्म जमा कराना होंदा जो तुसीं दसना है कि किन्नी तुसीं फीस वधाई है, किन्ना तुहाडे कोल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किन्ने कंप्यूटर ने, किन्ने कमरे ने, किन्नी बिल्डिंग है। वो इस बारी असीं रेगूलेटरी बॉडीज़ नूं हर जिले लैवल के उत्ते रेगूलेटरी बॉडीज़ नूं असीं इंश्योर कर दिता कि 30 अप्रैल तक जो परफॉर्मे ने वो सारे परफॉर्मे हर एक प्राइवेट स्कूल नूं भर के जमा कराने होणगे ते असीं रैंडम जिहड़ी चैकिंग भी करांगे। ते अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर कभी भी सानू लगता है कि वो पाया गया तो उसके उत्ते असीं स्ट्रिक्ट जिहड़ा है एक्शन लवांगे, कार्रवाई करांगे। एक बारी दोबारा मैं ईमेल आईडी रिपीट कर देना, emofficepunjab@gmail.com। ते नाल ही इस तो अलावा जिहड़ी रेगूलेटरी बॉडीज़ ने 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ whoever is found guilty will be booked, ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ स्ट्रिक्ट जिहड़ा है इंस्ट्रक्शंस ने, निर्देश है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल दी जिहड़ी असीं लुट है असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से प्रदेश में मान सरकार आई है शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है, जिसका उदाहरण आज हम सबके सामने है। मान सरकार के कार्यकाल में स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। दरअसल पंजाब में एक ऐसा भी समय था जब प्रदेश के सरकारी स्कूल केवल नाम मात्र ही स्कूल कहलाते थे। उनमें छात्रों के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी, जिसके चलते अभिभावक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से पहले 10 बार सोचते थे।
लेकिन समय बदला और मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली और आज पंजाब के सरकारी स्कूल भी किसी प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं है। मान सरकार हर वह प्रयास कर रही है जिससे कि छात्रों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री भगवत मान ने प्राइवेट स्कूल्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि एडमिशन्स का दौर शुरू हो चुका है और इस टाइम पेरेंट्स लगातार ही हम कह सकते हैं कि महंगी बुक्स का बोझ झेल रहे हैं और इस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं कि कई पेरेंट्स ने मुख्यमंत्री भगवत मान को शिकायत भी भेजी। तो इसको लेकर खुद हम कह सकते हैं पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस ने जानकारी दी है कि पंजाब में अब कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमानी नहीं कर सकेगा। उनकी तरफ से एक ईमेल एड्रेस जारी किया गया है emofficepunjab@gmail.com। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि अब वो खुद पर्सनली शिकायतें हैंडल कर रहे हैं कि पंजाब में कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर बच्चों की एजुकेशन के नाम पे ओवरचार्ज करता है। एजुकेशन के नाम पे ओवरचार्ज करने का मतलब आपको बताते हैं कि इस टाइम जैसे बच्चों की एडमिशन होती है तो जो किताबें जो पहले हम कह सकते हैं कि 2 से 3 हज़ार में आ जाती थी, अब उन किताबों के दाम बढ़ाकर 6 से 10 हज़ार के बीच में हो गए। अलग अलग स्कूल प्राइवेट